तो जितना मैं आपको जान पाया, since you are a retired person, your both the kids are married, you do not have financial any goal, but whatever the time you are investing, if some money is created, you can use it for the society or your kids, maybe their kids and all. This is the Right. so that means there is no need of taking a lot of risk. No need of taking a lot of risk. The first thing which you have to follow, you have to keep stocks 25 to 35 in your portfolio. Rule number one. Rule number two, you are not supposed to put more than 5 or 6% in any stock. Any stock. I'm repeating. Suppose you have a portfolio of 10 lakh rupees. Suppose I do not want to know your portfolio and you should not be disclosing your portfolio to anyone. This is one thing you have to always remember. You are not supposed to disclose your portfolio to anyone. If I'm a financial advisor, I should give you advice. I should not be knowing your money, whatever the money you have. So second very important thing in your mind, that suppose if you have 10 lakh rupees to invested, you should not invest 50,000, more than 50,000, 60,000, 70,000 in one share. It should not be that you have invested 2 lakh rupees in one share or 3 lakh rupees in one share. Okay. Why I'm saying this? Suppose in any situation, a, a concept like a situation like IndusInd Bank happens, what happened only 10 days back. If that share goes down by even 50%, your portfolio will go down only by 3%. Suppose you have 5 or 6% of any share. If that share will go down by 50%, your portfolio will go down only by 3%. So always remember, you will not invest in any share which is 5 to 6%. You can invest 3%, 4%, 5%. Start with 3%. Suppose you find a very good share today. You put 3% in that. If you see, you get more confidence, okay, this is a good share, doing good, has come down, or you have more money, you can invest. Go till 6%, not more than that. And do not invest in any share 1%, 2% also. Do not invest 5,000, 10,000 in any share. Why? Because if you have 10,000, you invest into a share. So that means that investment will be a casual investment. चलो कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा. Casual. You are not supposed to do casual investing. Do your research and put at least a specific amount कि अगर वो ऊपर जाए तो उससे कुछ फायदा हो. Suppose you have invested 1,000 rupees, वो कल को 2,000 हो भी गया, डबल हो गया, क्या फर्क पड़ेगा उससे. लेकिन इफ यू हैव इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज, अगर वो डबल होगा तो एक एक अमाउंट आपको मिलेगा जिससे आप अपना कुछ काम कर पाएंगे और आपको कुछ फायदा होगा. तो डू नॉट इन्वेस्ट वेरी लेस or do not invest very large amount. That is the rule which you have to follow in any situation. Number of share 25 to 35 and investment money 3% to 6%. Not less than 3%, not more than 6%. बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, बहुत अच्छा हो गया, मार्केट बहुत नीचे आ गया, कोई रिलायंस जैसा शेयर है, कोई एचयूएल जैसा शेयर है, कोई बजाज फाइनेंस जैसा शेयर है, टाइटनिक जैसा, सॉरी टाइटन जैसा शेयर है, बहुत नीचे मिल रहा है. उस केस में चलो 6 की जगह 6.5 कर दिया, 7 कर दिया, बस. नॉट मोर देन दैट. ये आपको ध्यान रखना है किसी भी हालत में. क्लियर है? अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बैंक में पैसा है, प्लीज डू नॉट थिंक दैट मनी इज अ बर्डन कि जल्दी से मैं मार्केट में लगा दूं, मार्केट ऊपर जा रही है, भाग रही है, तो जल्दी से लगा दूं. ऐसा नहीं करना. अपना मार्केट जो बैंक में एफडी में पड़ा है पड़े रहने दीजिए. जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोटी छोटी एफडी करिए. अगर सपोज आपके पास 10 लाख है, 50-50 हजार की, आप 20 एफडी कर दीजिए. अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में, लगता है कोई शेयर अच्छा आ गया या मार्केट नीचे आ गया, इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी आ गई, तो एक एफडी को तोड़िए और इसमें लगा दीजिए. ठीक है? ये नहीं कि सारा पैसा मुझे, आपको
ध्यान रखना है कि एफडी एक अच्छा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है आपकी एज में। आपकी एज में अगर कोई यंग होता, 30 साल का होता, 35 साल का होता, तो मैं कहता एफडी में मत जाओ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एफडी आपको रखना है। तो जब भी मार्केट बहुत सस्ता हो जाए, अब सस्ता और महंगा क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, क्लासेस आप ले चुके हैं। तो जब मार्केट बहुत सस्ता हो जाए, शेयर्स का पी बहुत नीचे आ जाए, पी भी बहुत नीचे आ जाए, तो आपको कोई एफडी तोड़ के वहां से पैसा निकाल के और बैंक में डाल के और उसको शेयर खरीद लेने। जब मार्केट बहुत महंगा हो जाए, बहुत ऊपर भाग जाए, जैसे अभी गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, इस समय गोल्ड नहीं खरीदना। अगर गोल्ड है भी, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो गोल्ड से थोड़ा गोल्ड बेच के एफडी कर दो। तो ऐसे ही मार्केट में करते हैं। मार्केट बहुत सस्ता हो गया तो मार्केट में एफडी से पैसा निकाल के डाल दिया, और अगर मार्केट बहुत महंगा होने लगता है तो मार्केट से पैसा निकाला एफडी में डाल दिया, चुपचाप बैठे हुए हैं, देखा जाएगा जब टाइम आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब बहुत महंगा होता है तो यूफोरिया हो जाता है, यूफोरिया। सब लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। उस समय आपको अगर अगर मान लो आज के 6 महीने पहले हमने मार्केट से पैसा निकाल लिया होता, तो आज हम फायदे में रहते। उस समय यूफोरिया था। आज मार्केट में बहुत ज्यादा डर है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये टाइम लगाने का है, इस टाइम पे लगाना होता है। तो ये बेसिक रूल जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप मुझे अपने स्टॉक्स बताइए। मैं एक एक स्टॉक को देखूंगा। हो ठीक है। सकता है कि आज हम 10 देख पाए, फिर ठीक अगली है। मीटिंग में फिर 10 देखेंगे। थोड़ा ठीक सा है। मेरे गले में भी प्रॉब्लम है, तो हम 10 स्टॉक, हाँ, हाँ। कोई भी 10 स्टॉक जो आपके पास है उसको आप हम्म। बताइए। मैं एक एक के फंडामेंटल देखूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सही जा रही है कि गलत जा रही है। जो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस कम है, पहले उनको बताइएगा मुझे। ऐसे स्टॉक जिनमें आपको डर लग रहा है, पूछना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है। कॉन्फिडेंस है ना, कोई बात नहीं। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस बताइए कुछ स्टॉक के नाम बताइए जो आपके है। पास। 5% मैक्सिमम। मैक्स। मैंने 4 स्टॉक में लिया है। ओके, 5%। कौन कौन से हैं? एशियन पेंट्स। एक सेकंड मुझे देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए, एशियन पेंट का सबसे पहले जब भी आप कोई शेयर देखते हैं तो दो तीन चीजें देखनी है। एक तो आरओसी देखिए, आरओई देखिए। ये देखिए, आरओसी आरओई 15 के ऊपर होना चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा। यहाँ पे आपको 37 31 दिख रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक। आरओसी आरओई अच्छा है। दूसरा, हम्म। स्टॉक का पी देखना है, लेकिन यहां से नहीं देखना पी। ये 50 में पी दिख रहा है ना, पी के लिए आपको यहां आना है, यहाँ पे राइट। आके और देखना है कि एवरेज के नीचे, ये जो एवरेज लाइन दिख रही है डॉटेड, ये एवरेज डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके हाँ, हाँ। नीचे नीचे है एवरेज आपकी 76 की है। अगर मैं 10 साल का एवरेज देखता हूँ, हम्म। 10 साल का एवरेज देखता हूँ, 60 का है। अभी आपको हम्म। मिल रहा है 51 पे, 51 पे हम्म। दिख रहा है, ठीक है। हम्म। मतलब पी भी ठीक है। तो मैंने तीन चीज देखा, आरओसी देखा, आरओई देखा और पी देखा। ये तीन राइट। चीजें देखा। अब इसके हम्म। बाद, अब इसके बाद मैं गया सीधे इसका क्या देखने के लिए, इसकी मैंने प्रॉफिट्स को देखा और सेल्स हम्म। को देखा। क्या सेल्स बढ़ता जा रहा है? ये देखिए, सेल्स बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ। दिख रहा है। तो सेल्स जो है, अगर किसी स्टॉक का 10 साल में, 10 साल में 3 गुना हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, तो वो अच्छा सेल्स माना जाता है। देखिए जरा, 10 साल पहले 10,000 करोड़ का था, नाउ इट इज 34,000 करोड़। अच्छा है, 3 टाइम्स से ज्यादा है। उसी तरह प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट 10 साल पहले, यहाँ देखिए प्रॉफिट स्क्रीन पे, प्रॉफिट 1,000 करोड़ था, अब 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कितना होता है? 3,000 करोड़। अगर 3,000 करोड़, 3,500 करोड़ हो जाता है, 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है, तो अच्छा है, यानी प्रॉफिट भी अच्छा है। इसका स्टॉक का प्रॉफिट भी देखेंगे तो अच्छा है। यानी हमने सेल्स का ग्रोथ भी देख लिया और प्रॉफिट का ग्रोथ भी देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज देखनी है, वो कंपनी के ऊपर लोन देखना होता है, लोन। यहाँ देखिए, 2,500 करोड़ का लोन है। अब कंपनी के ऊपर ये जो कंपनी की रिजर्व और इक्विटी है, यहां देखिए 96 और 17, ये दोनों मिला के 17,926 और 96, इनको मिला के
हम कहते हैं कंपनी का पैसा कितना है, कंपनी का अपना पैसा, और कंपनी के ऊपर लोन कितना है। तो कंपनी का अपना पैसा तो है करीब 19,000 करोड़, कंपनी के ऊपर लोन है 2,000 करोड़, तो ठीक है, बहुत ज्यादा लोन नहीं है। अगर यही कंपनी का अपना पैसा होता 19,000 करोड़, कंपनी के ऊपर लोन होता 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो कंपनी के ऊपर हम कहते हैं बहुत लोन है। उसको आसान तरीका है, आप यहां भी देख सकते हैं, यहां पे जाके डेट इक्विटी रेशियो यहां पे लिख दीजिए, डेट इक्विटी, डेट टू इक्विटी, यहां देखिए। अच्छा, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन नहीं है इसलिए ये नहीं दिखा रहा, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो एशियन पेंट आपने कहा था, तो अब देखिए यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है, हाँ डेट टू इक्विटी ऑलरेडी आ गया होगा कहीं पे, मैंने लगा रखा है, ये 0.14 दिख रहा है आपको। हाँ हाँ, हाँ, तो दिख रहा है। डेट टू इक्विटी जो है, अगर 10% का है, 5% का है, 15% का है, ये 14% है, 0.14 मतलब 14%। ठीक है, हाँ अगर ये डेट टू इक्विटी 100% हो जाए, 200% हो जाए, तो खराब है। अगर ये यहाँ पे 2 आ जाता, 3 आ जाता, 3.5 आ जाता, तो खराब है, उससे दूर रहना है। ठीक है, हाँ हाँ उसके बाद मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं आपको, मोटा मोटा ये चीज जरूर देखनी है, बाकी हाँ चीजें आप कैश फ्लो जरूर देखिए। ये कैश फ्लो हाँ पहला वाला, ऑपरेटिंग वाला, ये हाँ कैश हाँ, फ्लो कम से कम 10 साल में 3 टाइम्स होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स होना चाहिए। 4 हो जाए बहुत अच्छा है, 5 हो जाए, देखिए 1,000 करोड़ था, 6,000 करोड़ हो गया, बहुत अच्छा है, 6 टाइम्स हो गया, 6 टाइम हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये भी हमने देख लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है, वो देखनी है कि पब्लिक के पास ये कितना शेयर है। पब्लिक के पास, अगर पब्लिक के पास 15%, 20% है तो ठीक है, जैसे ये 19.66% है। लेकिन अगर ये पब्लिक, अगर ये 10% है तो बहुत अच्छा है, 5% है तो और अच्छा है। मतलब पब्लिक के पास जितना कम है उतना अच्छा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक के हाँ, पास जितना कम है उतना अच्छा है। ठीक है, ठीक ठीक। लेकिन अगर यही पब्लिक के पास 80% होता, 90% होता, 70% होता, तो वो खराब है, उससे दूर रहना है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक देखा, तो आपने जो शेयर बताया एशियन पेंट, वो ठीक लगा मुझे। ठीक है, अगला शेयर बताइए, अगला। ये अप टू एटलीस्ट 10 इयर्स में रख सकती हो। अभी मैम देखिए, अगले साल क्या होगा, फिर उसके अगले साल क्या होगा, साल में एक बार जरूर देखिए कि उसका पी क्या है, पीबी क्या। ठीक आप 10 ईयर का मूड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है। कि 10 ईयर के छोड़ दिया। हो सकता है हाँ, अगले साल प्रमोटर्स अपने शेयर बेच दें और पब्लिक के पास ये 90% पहुंच जाए, तो फिर हमें निकलना पड़ेगा इससे। ठीक ठीक है, ठीक ठीक नेक्स्ट ठीक। शेयर बताइए। तो 5% फोर स्टॉक्स में मतलब एशियन पेंट्स, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री को देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में भी आरओई थोड़ा सा कम है, हाँ लेकिन आरओई थोड़ा कम है, 15 हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन आपकी देखिए, एक तो हम ग्रोथ देखते हैं, दूसरा हम उसके अंदर बार्गेन देखते हैं। अभी रिलायंस इंडस्ट्री खरीदने लायक नहीं है, महंगा है, दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है आपको। हाँ, तो पहले का खरीदा है तो ठीक है, अभी किस प्राइस पे खरीदा है आपने, देख रहे हैं। आपके पास एवरेज प्राइस है इसका। हाँ हाँ है। रिलायंस किस प्राइस में? अच्छा, 1243 वन, एवरेज प्राइस। ठीक है, तो अब आपको इसको रेट पे मत खरीदिएगा। ठीक है, खरीद रखा है तो रिलायंस एक अच्छा शेयर है। ठीक है, हाँ, और इस ये मतलब रख सकते हैं अभी आप, जब इसका अच्छा। सही प्राइस आएगा निकलने वाला तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ठीक है, ठीक अभी आप है। रख लीजिए, ये ठीक बहुत लंबे समय तक रखने के लिए नहीं है, क्योंकि है। इसका आरओई आरओसी बहुत अच्छा नहीं है। तो अब ये मल्टी बैगर नहीं होगा, लेकिन नहीं। एफडी से बेटर है, एफडी से बहुत बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट शेयर बताइए। नेस्ले। नेस्ले, नेस्ले बहुत अच्छा शेयर है, और अभी जिस रेट पे आपने खरीदा है, किस रेट पे खरीदा आपने, जस्ट एट पर चल रहा है, 2224। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। आपने एवरेज प्राइस के नीचे खरीदा है, एवरेज वैल्यूएशन के नीचे खरीदा है, तो बहुत हाँ। अच्छा किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए। HDFC बैंक। HDFC बैंक, ये तो खैर सोना है, बहुत अच्छा हाँ, शेयर है ये। आपके वीडियो और से। इसकी हाँ, क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं है। और है। ये भी आपने एवरेज वैल्यूएशन के नीचे ही खरीदा है, क्योंकि पिछले हाँ, दो। 20% प्रॉफिट अभी। HDFC बैंक 1672 एवरेज प्राइस। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड प्राइस, गुड एक प्राइस। क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर है। हाँ अभी नहीं बेचना है। नहीं आपको रखना है। आपको देखिए, आप हाँ। यहाँ पे लाइफ टाइम हाई नहीं देखेंगे, देखिए स्क्रीन ओ। को देखिए, यहाँ नहीं देखेंगे। आप लाइफ टाइम हाई यहाँ देखेंगे। ये देखिए, पी कितना है अभी आपका, अभी 19 है, पॉइंट है। यस। एवरेज 20 है। ठीक। जब ये 22 के, 23 के, 24 के पी पे जाएगा, तब अच्छा। तब बेचना है। प्राइस नहीं देखना है, ओके पी ओके। हाँ। पी देखना है कि हाँ। जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो एक समय आएगा कि ये 22 के, 23 के, 24 के पी पे चला जाएगा, तब थोड़ा हाँ, सा 2-3% इसमें से आप बेच दीजिए। ओके। ठीक है। ठीक ठीक। नेक्स्ट 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 बताइए। और नेस्ले एक नेस्ले। साल बाद नेस्ले बोला ना। हाँ नेस्ले तो बता दिया मैंने आपको। और ठीक है। बताइए। अच्छा। हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉर्प, एक सेकेंड। लॉस में है 11%। हीरो मोटोकॉर्प, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ हम्म। देखिए, 29 का ROC है, 20 का ROE है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। स्टॉक खराब नहीं है आपका, स्टॉक हम्म। पर्सन है, नीचे आया हुआ है, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। अभी नीचे है हम्म। स्टॉक, अच्छी वैल्यूएशन पे है। ग्रोथ जो है कंपनी की अच्छी है, अगर आप देखेंगे हम्म। कंपनी कंपनी के शेयर्स देखेंगे, तो भी कंपनी के शेयर्स, कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है। जैसे अब क्यों लॉस में है, आपने खरीदने से पहले मुझसे पूछते तो मैं बताता। देखिए 2000 करोड़ से 3 टाइम्स कितना होता है, 6000 करोड़ होता है ना। राइट। और राइट अभी करेक्ट अभी करेक्ट। अभी ये कितना है, 4000 करोड़। 2 टाइम्स। हाँ 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 तो हाँ। इसलिए उतना ग्रोथ नहीं है जितना हमें चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, खरीद लिया तो अभी बेचने का टाइम नहीं है। बेचने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक 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 है। ठीक है। तो ये बहुत आपको, ये बेसिक चीज अगर आप देखते तो आपसे ये जो आप कह रहे हैं ना लॉस हुआ, ये गलती नहीं होती। अभी जैसे हम्म। कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो आपने 2-3 महीने पहले से शुरू किया है, आपके अभी लर्निंग का स्टेज है। तो हम्म। ये मान लीजिए कि दिस इज लर्निंग, इसमें नुकसान नहीं होगा, FD से बेटर रिटर्न मिल जाएगा आपको। लेकिन आगे से ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टॉक, जैसे यहाँ देखिए प्रॉफिट के, सेल्स है 25, 25 का हाँ। 3 टाइम्स होता ये है भी 75। तो करेक्ट ये, करेक्ट। हाँ ये ग्रोथ नहीं है, तो उतना ग्रोथ होता तो ग्रोथ जरूर देखना है, कंपनी में ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। कंपनी अगर स्टेगनेंट हो गई है तो उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। लेकिन ICICI GI। लेकिन अभी मैं, ICICI नंबर। अभी मेरे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको हीरो मोटो को आप बेचने को नहीं बोला, क्योंकि अभी नहीं नहीं। मार्केट डाउन है। मार्केट राइट। जब पूरा ऊपर आएगी तो हीरो मोटो हम्म। को भी ऊपर आएगा, उस समय धीरे से, राइट। उस समय धीरे से निकल जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बताइए, आपने कहा ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड, देखिए अब देखिए, इसका ROC ROE बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर मैं इसका वैल्यूएशन देखूं तो नीचे आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और आप इसके ग्रोथ को देखिए, 4000 से नाउ, 5 टाइम्स। प्रॉफिट के ग्रोथ को देखिए, अच्छा है ना, दिख रहा है आपको। हाँ 300 से, तो थ्री हाँ। टाइम 900 होना चाहिए, लेकिन तो ये राइट बहुत है। अच्छे स्टॉक है, इसको रखिए। ये आप 5 साल 10 साल रखने वाले स्टॉक हैं, ये बहुत अच्छे। हाँ हम्म। ठीक है। यहाँ देखिए प्रमोटर, यहाँ देखिए पब्लिक की होल्डिंग देखिए, केवल 6% है, केवल सिक्स वाह। परसेंट इसका मतलब कि बड़े बड़े लोग इस शेयर को खरीद रहे हैं, पब्लिक के पास ये शेयर नहीं बचेगा आने वाले सालों में। ये शेयर है अगले 10 साल 15 साल रखने वाले। लेकिन हाँ हर साल एक बार देखना जरूर है कि हाँ क्या हो रहा है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। दो। HDFC AMC। हाँ जी। HDFC AMC। HDFC AMC, देखिए ROC देखिए, ROE देखिए। ठीक है सबसे पहले,
फिर हमने कंपनी का, ये मैं आपको घर का दिखा रहा हूं ताकि आपके स्टॉक मान लो 30 है, हमने आज 10 देखे, तो बाकी 20 का आप खुद देखो। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, फिर जब हम अगली मीटिंग करेंगे एक हफ्ते राइट। बाद, तो आप बताना सर मैंने ये देखा है। तो मैं आपके, क्योंकि मेरा पर्पज आपको सिखाना भी है, मेरा पर्पज आपको टिप्स देना नहीं है। आप सीख जाएंगे तो आप हमेशा अपने आप करेंगे। आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसलिए मेरा काम है आपको सिखाना। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो आपको पी भी ठीक मिल रहा है, अच्छे पी पे आपने लिया है। अब मैं ग्रोथ देखूंगा, तो ग्रोथ देखिए, सेल्स को ग्रोथ देखिए, दिख रहा है सेल्स का ग्रोथ। राइट। आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है। ठीक। फिर आगे चलते हैं, लोन देखते हैं, क्या कंपनी के ऊपर बहुत लोन है? जीरो। जीरो लोन है, बहुत अच्छी कंपनी है। फिर देखिए कंपनी का कैश फ्लो का ग्रोथ देखिए, कैश फ्लो 7 से, ठीक है। अगर ये 21 तक हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और अच्छा हो अच्छा। जाता, लेकिन इट्स ओके, फिर भी ठीक है। बिकॉज सेल्स का है, प्रॉफिट का है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, होल्डिंग पैटर्न देखिए, केवल 9% पब्लिक के पास है। अच्छी, राइट। अच्छी कंपनी है ना? तो अगर जब आपको कंपनी नहीं भी खरीदनी है ना, आप अपना लिस्ट बना के रखिए कि कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं। ये सारी चीजें देख के, आरओसी देखिए, आरओई देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, पब्लिक की होल्डिंग देखिए, लोन देखिए, सेल्स का ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए। इसको देख के अच्छी अच्छी कंपनियां पहले से लिस्ट बना के रखिए। जब आप खाली बैठते हैं, आपके पास टाइम होता है, तो 100 200 300 कंपनियां छांट के रखिए कि हाँ ये अच्छी कंपनियां मैंने छांटी हैं। उससे आपकी लर्निंग बहुत हो जाएगी। ठीक है, हाँ। हाँ। एक कंपनी और बता दीजिए। फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक, ये सब आपने हमारी क्लासेस से सुने हैं क्या? हाँ, यस। हाँ। चलिए, क्योंकि अपनी क्लासेस में मैं इस तरह की कंपनियों की बात करता रहता हूँ, जो कि मैं टिप्स तो नहीं देता, लेकिन देखिए आरओसी आरओई बहुत अच्छा है। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए, कितनी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग, 75%, बहुत ही अच्छी है। ठीक है। अगर मैं वैल्यूएशन देखता हूँ, तो बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है, बहुत नीचे मिल रही है। ठीक है। उसके बाद मैं ग्रोथ देखता हूँ, यहाँ देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है कंपनी में पिछले 10 सालों में। हाँ। हाँ। ठीक है। अगर आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखें, बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा ग्रोथ है पिछले 10 सालों में। उसके राइट। बाद कंपनी के ऊपर लोन ना के बराबर है, केवल 4 करोड़ का लोन है। ठीक है। इतना लोन तो एसबीआई से कोई ऐसे ही घर बनाने के लिए भी ले लेता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए होल्डिंग पैटर्न देखिए, पब्लिक के पास केवल 8% है। राइट। उसके बाद कैश फ्लो भी देख लीजिए थोड़ा सा, कैश फ्लो कितना है? कैश फ्लो जो है वो भी बहुत अच्छा ग्रो किया 2017 से, दो डेटा आपको मिलेगा। 10 टाइम्स। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो ये आपको कहते हैं कि आपने अच्छी कंपनियां, तो आपके पास कंपनियां खराब नहीं है, तो मैं समझ गया। अब आप क्या करिएगा, करीब हमने 8 से 10 कंपनियां डिस्कस की है, आप बाकी कंपनियों को भी ऐसे ही देखिएगा। ठीक, आप लिखना चाहेंगे मैं बताऊं क्या क्या देखना है, या लिख आपको समझ में याद आ गया? समझ में आए। समझ में आ गया? तो इन चीजों हाँ। को देखिएगा। एक हफ्ते बाद हम लोग एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही। फिर आप उनमें से देख के फिर मुझे बताइएगा कि सर मैंने ये देखा है। आप बताइए कि इसमें से कौन सी कंपनी रखनी है और कौन सी कंपनी निकालनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये वाली कंपनियां हटा दीजिए। फिर आपका पोर्टफोलियो 30 35 40 कंपनी, मतलब 25 से 35 के बीच में अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर धीरे धीरे हर महीने 2 कंपनियां बेचेंगे, 2 नई कंपनियां खरीदेंगे, 2 कंपनियां बेचेंगे, जो कंपनियां, जैसे आज आपके पास मैसेज भी आया होगा कि मैंने आज एक कंपनी बेची है, मैसेज आया था आपको? हाँ। हाँ। हाँ आया तो, है। हाँ तो मैंने आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया है। हमारे मेंटरिंग के जितने लोग हैं, उन सबको हमने, हमारे पास करीब 150 लोग हैं, उन 150 लोगों का एक ब्रॉडकास्ट बनाया है। मैं ठीक कभी है। नहीं कहता कि आप ये खरीदो या आप ये बेचो, आपकी मर्जी है। मैं ये बताता हूं कि मैंने क्या खरीदा है और मैंने क्या बेचा। ठीक। तो मैं कुछ खरीदूंगा तो बता दूंगा ये अच्छी खरीदने लायक है, और मैं कुछ बेचूंगा तो बता दूंगा ये मैंने बेच दिया है क्योंकि इसमें प्रॉफिट अच्छा आ गया। अब आपकी मर्जी है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, ध्यान रखना। मैं टिप्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, मेरा काम है आपको सिखाना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अगले साल 2 साल 3 साल जुड़े रहें, और धीरे 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 सीख लें। जब आप सीख लेंगे, फिर आपको किसी सुनील त्रिपाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे?
कोई मन में क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहें? स्टॉक्स की कोई पूल नंबर ऑफ माने टोटल स्टॉक्स आप मुझे भेजेंगे क्या? मैं आपको मेरा जो 250 स्टॉक का लिस्ट है हाँ 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 वो मैं आपको भेज दूंगा 1-2 दिन में। थोड़ा सा हाँ। अभी हम लोग उसको रिफाइन करने पर लगे क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आई थी, तो उसमें कुछ अच्छा ऐड और अच्छा। कुछ, क्योंकि हम करते रहते हैं, उसमें कुछ हाँ ऐड हाँ करते हैं, कुछ माइनस करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो अभी right, हमारे हमारी टीम लगी हुई है। तो जैसे हाँ ही हाँ वो कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको हाँ लिस्ट हाँ, भेज दूंगा। हम अपने सारे मेंटरिंग वालों को लिस्ट भेजते रहते हैं हर ठीक। 6 महीने के बाद। वो पूल रिफाइन करके कि अब हमारे हाँ पूल में ये वाले स्टॉक है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक लेकिन ध्यान ठीक। रखना है, वो कोई टिप्स नहीं है, ये नहीं हमेशा नहीं नहीं। ध्यान रखना है। वो अच्छे स्टॉक हैं, उनको देख के आपको ये पता चलेगा कि अच्छे स्टॉक क्या होते हैं, कैसे अच्छे, उनमें क्या क्या चीजें हैं जो बाकी स्टॉक में आपको ढूंढना है। ठीक है। ठीक है ठीक। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि मैं आपकी कुछ है मदद कर पाया। ठीक है। और अभी है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।